السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ہاشم پرتاپ گڑھی، آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں ہمارے خاص پروگرام تردید آریہ سماج۔ اس پروگرام میں ہم سوشل میڈیا کے ذریعے سے پھیلائی گئی نفرت کا جواب دیں گے اور دنیا کے سامنے رکھیں گے اسلامی تعلیمات۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر اور خاص کر یوٹیوب پر تحرش گیمیاں جیسے گھناؤنے کام کو اسلام سے جوڑنے کی ناپاک کوشش ہے۔ تحرش گیمیاں کا مطلب کسی لڑکی کو ہراسمنٹ کرنا، سیکسولی ابیوز کرنا، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا، اس کو پریشان کرنا۔ آئیے سماج کے کچھ حضرات اپنی کمی کو چھپانے کے لیے اس طرح کے عورتوں کے ساتھ ہراسمنٹ کو اور لڑکیوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کو اسلامی تعلیمات سے جوڑنے کی ناپاک کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ہائے افسوس کہ آپ کو اسلام دشمنی میں سچ اور جھوٹ کا بھی فرق یاد نہ رہا۔ تحرش گیمیاں یہ کوئی اسلامی گیم نہیں ہے، بلکہ عورتوں کے ساتھ ایک کھلواڑ ہے، زیادتی ہے۔ ایسے ناپاک گیم میں انوالو ہونے والے لوگ سماج میں زندہ رہنے کا حق نہیں رکھتے، لیکن کچھ زیادہ ہی عقل مند وہ لوگ ہیں جو اس ہراسمنٹ کو، اس حیوانیت کو اسلام سے جوڑنے کی ناپاک کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی مانسکتا رکھنے والے لوگ صرف اور صرف انسان نما جانور ہوتے ہیں، جانور۔ لیکن اس کے باوجود بھی تم جیسے سمجھدار لوگ اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتے ہو اور کہتے ہو، اس کے باوجود ایک پاکیزہ تعلیم، اسلام، قرآن، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے تم تحرش گیمیاں کو جوڑنے کی کوشش کر دیے۔ آئیے تمہارے گندگی کو دور کرنے کے لیے ہسٹری سے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک عورت راستہ چلتے جا رہی تھی۔ اسی طرح کی مانسکتا رکھنے والے لوگوں میں سے ایک راستہ چلتے عورت کو پکڑتا ہے اور اس کے ساتھ کیا کرتا ہے پتہ نہیں، لیکن نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس نے عورت کو پتھر سے مار دیا، پھر بھی وہ عورت زندہ رہتی ہے۔ اس عورت کو اللہ کے رسول محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ آپ نے اس کی حالت کو دیکھنے کے بعد بہت پریشان ہوئے۔ عورتوں کے بارے میں، ایسی مانسکتا رکھنے والوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے نام لے کر کے پوچھا۔ اس وقت کے جتنے مجرم ہتھیارے تھے، اس وقت کے جتنے اس قسم کی مانسکتا رکھنے والے لوگ تھے، ایک ایک کا نام لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا، فلاں نے ایسا کیا۔ جب اس انسان کا نام آیا جس درندے نے اس عورت کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی تھی، جب اس کا نام آیا تو اس عورت نے اپنے اشارے کے ذریعے سے کہا کہ ہاں یہی ہے۔ کنفرم کرنے کے بعد اس درندہ صفت انسان کو بلایا، بلانے کے بعد اس سے بھی کنفرم کیا۔ کنفرم کرنے کے بعد اس آدمی کو، ایسی مانسکتا رکھنے والے انسان نما جانور کو، دو پتھروں کے درمیان میں رکھ کر کے اس کے سر کو کچل کر کے اس کو قتل کر دیا۔ سماج کو ایسی مانسکتا رکھنے والے لوگوں سے ایسے بچایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسلامی تعلیم نے ایک رول دیا، ایک نمونہ دیا کہ ایسی مانسکتا رکھنے والے، ایسے عورتوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے والے انسان کو ویسے ہی سزا دینی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کر کے بتایا اور کہا کہ اینٹ کا جواب اینٹ سے، پتھر کا جواب پتھر سے دینا چاہیے۔ اسلام نے تحرش گیمیاں جیسی خبیث حیوانیت کی پرزور مخالفت کی ہے۔ تم تحرش گیمیاں جیسے خبیث کام کو کس اسلام سے جوڑنے کی کوشش کر رہے ہو؟ او آریہ سماجیو، تمہاری گندی زبان سے نکلے ہوئے کا نام اسلام نہیں ہے۔ اسلام نام ہے قرآن کا، اسلام نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا۔ کسی عورت کو ہراسمنٹ کرنے کی بات تو بہت دور کی ہے، دکھاؤ کہ اسلام کے کس حصے میں کسی عورت کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھنے کا حکم ہے۔ ہاں، اس کے برعکس آپ کو یہ تعلیم ضرور ملے گی کہ اچانک اگر کسی عورت پر نگاہ پڑ جائے تو فوراً سے پہلے اس نگاہ کو نیچی کرنے کا حکم ہے۔ یہ ہے اسلامی تعلیم۔ او آریہ سماجیو، تمہاری گندی ذہنیت کو آؤ روشن کرے دیتا ہوں۔ جب دیکھو تب اسلامی تعلیمات تمہاری گندی زبان پر ہوتی ہے۔ اگر اسلامی تعلیم ہی دیکھنا ہے تو ہم سے کیوں نہیں سیکھ لیتا، یا کسی اسلامی پاٹھشالہ میں جا کر کے ہم جیسے کسی ادنا طالب علم سے کیوں نہیں سیکھ لیتا؟ اسلام کے کسی ادنا طالب علم سے کیوں نہیں پڑھ لیتا، کیوں نہیں سیکھ لیتا، کیوں نہیں پوچھ لیتا؟ تحرش گیمیاں جیسے خبیث کام کو تم اسلام سے جوڑنے کی ناپاک کوشش کر رہے ہو۔ تحرش گیمیاں خبیث حیوانیت زدہ کام کو اسلام سے جوڑنے کی ناپاک کوشش کر رہا ہے تو او آریہ سماجیو سنو،
इस्लामी तालीम ये है, किसी औरत के हाथ से जानबूझ करके टच करना इससे बेहतर है कि इंसान के सर में कील ठोक दी जाए। एक पक्का और सच्चा मुसलमान अपने सर में कील ठोक लेने को बेहतर समझता है किसी औरत को जानबूझ करके टच करने से। ये है इस्लाम। ओ आर्या समाजियों, ये है इस्लाम। तुमने तहरुश गेमिया, तहरुश जिनसी या औरत के साथ हरासमेंट करने को आयत पर्दा से तुमने जोड़ा है, इस्लामी तालीमात के आयत पर्दा से जोड़ने की कोशिश की है, कुरान मजीद से जोड़ने की कोशिश की है। ये तुम्हारी नापाक कोशिश है। तुमने अपनी बदज़हनियत को जाहिर करते हुए कहा कि औरतों के साथ हरासमेंट करने वाले यही लोग थे जो मुसलमान थे, इसीलिए इन्होंने अपने बच्चियों को, अपनी लड़कियों को, अपनी औरतों को बचाने के लिए एक निशान दे दिया कि इनको न सताया जाए, बाकी लोगों को सताया जाए। तुमने कह दिया कि आयत पर्दा इसीलिए नाजिल हुई कि इनको पहचान लिया जाएगा कि इनको सताया नहीं जाएगा, क्योंकि यही मुसलमान लोग ही औरतों के साथ हैरासमेंट करते थे, यही औरतों के साथ छेड़छाड़ करते थे, इसलिए अपनी औरतों को बचाने के लिए उन्होंने एक निशान दिया है। इस बात का जवाब देने से पहले मैं तुम्हारे रूहानी बाप दयानंद जी की बात याद दिलाता हूँ। दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश सफा नंबर 697 में लिखा है, जो मजहब दूसरे मजहबों को, जिनके हजारों करोड़ों आदमी मानने वाले हों, मुअतकिद हों, उसको झूठा बतलाए और अपने आप को सच्चा जाहिर करे, उससे बढ़कर के झूठा मजहब और कौन होगा। ये तुम्हारे दयानंद जी ने कहा है। तुम अपने रूहानी बाप की आज्ञा को भी भूल गए इस्लाम दुश्मनी में। तुम भूल गए तो भूल गए, कोई बात नहीं, क्योंकि ये तुम्हारे रूहानी बाप की ही आदत है। आयत पर्दा वाली बात का जवाब देने से पहले आइए मैं तुम्हारे घर की खबर लेता हूँ। अगर तुम्हारी खबीस ज़हनियत की तरह मतलब निकाला जाए तो सुनो। ओ समाजियों, तुम्हारे रूहानी बाप दयानंद जी ने कहा है सत्यार्थ प्रकाश के अंदर, उन्होंने कहा कि लड़कों और लड़कियों की पाठशाला एक दूसरे से 10 कोस की दूरी पर होना चाहिए, और कहा कि लड़कों यानी मर्दों की पाठशाला में कोई औरत न जाने पाए और औरतों की पाठशाला में कोई मर्द न जाने पाए, मर्दों की पाठशाला में कोई औरत न जाने पाए और औरतों की पाठशाला में कोई मर्द न जाने पाए, और कहा कि यहां तक कि 5 साल का बच्चा भी किसी औरतों के पाठशाला में न जाने पाए और 5 साल बच्चे भी किसी मर्दों के पाठशाला में ना जाने पाए। ओ आर्या समाजी भाइयों, बताओ तो सही, ऐसा क्यों रोका जा रहा है? क्या तुम्हारे तमाम पाठशाला में जो भी मर्द होते हैं वो औरतों को नोचते हैं, औरतों के साथ छेड़छाड़ करते हैं ना, इसीलिए तो रोक रहे हैं तुम्हारे गुरुजी। तो फिर क्यों रोक रहे हैं? और तो और 5 साल बच्चा भी ना जाने पाए, 5 साल बच्ची भी ना जाने पाए तुम्हारे मर्दों के बीच में, क्यों रोक रहे हैं तुम्हारे रूहानी बाप दयानंद जी? इसीलिए ना कि तुम 5 साल बच्चियों को भी नहीं छोड़ते थे। क्यों रोक रहे हैं? इसका जवाब मैं तुम पर छोड़ता हूं, जवाब जरूर देना। हाय अफसोस, कैसा अकल का दुश्मन है जो शीशे का घर बनाता है और लोगों पर पत्थर बरसाता है। और बताऊं क्या, दयानंद जी हिंदुओं को मंदिर बुतखानों में जाने से रोकते हुए लिखा है सत्यार्थ प्रकाश सफा नंबर 419 में, जाकर के देख लेना। लिखते हुए उन्होंने कहा कि औरतों और मर्दों का आपस मेल जोल होने से जिनाकारी होती है और बीमारी बढ़ती है। मेरा सवाल यह है कि तुम्हारे रूहानी बाप दयानंद जी रोकते क्यों थे? इसीलिए ना कि वहां सब मर्द औरतों को नोचने के लिए बैठे रहते थे, वहां सब औरतों को हमेशा नोचने के लिए तैयार रहते थे ना, इसीलिए तो उन्होंने मना किया। क्यों मना किया? ओ आर्या समाजियों, क्या इस बात से तकलीफ हुई? ऐसी ही तकलीफ उन्हें भी होती है जब तुम बगैर किसी सरपैर के एक बात को दूसरी बात से जोड़ने की कोशिश करते हो। तुमने कहा ना कि नाउज़ बिल्लाह मोहम्मद और उस वक्त के मुसलमान औरतों के साथ छेड़छाड़ करते थे, इसीलिए उन्होंने अपनी बच्चियों को बचाने के लिए पर्दे वाली, चादर वाली निशान दे दिया, पर्दा लटकाने का हुक्म दे दिया, चादर लटकाने का हुक्म दे दिया, ताकि उनके लिए एक निशान हो जाए कि ऐसी औरतों को ना छेड़ा जाए, ऐसी औरतों को ना सताया जाए, क्योंकि वही लोग थे ना छेड़ने वाले। तुमने ही तो कहा। यहां तो तुम्हारे गुरुजी भी यही कर रहे हैं, तो आप इन पर क्या हुक्म लगाओगे? क्या ये भी औरतों को छेड़ा करते थे? या उस वक्त दयानंद जी के जो भी साथी थे वो भी औरतों को छेड़ा करते थे? इसीलिए तो दयानंद जी ने मना किया है। क्यों मना किया, इसका जवाब मैं तुम पर छोड़ता हूं, जवाब जरूर देना, और कम से कम कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देना, मैं देखने की जरूर कोशिश करूंगा। ओ खबीस ज़हनियत वाले लोग, जरा हरासमेंट करने वालों के बारे में मुझसे पूछ लिया होता या किसी इस्लामी पाठशाला में जाकर के पढ़ लिया होता कि उस वक्त कौन लोग थे, किस तरह की मानसिकता रखने वाले वो लोग थे जो औरतों के साथ छेड़खानी करते थे, औरतों को हरासमेंट करते थे। वो कौन लोग थे और उनकी मानसिकता क्या थी, वो किस किस्म के लोग थे। आइए अब मैं आपकी खबीस ज़हनियत का इलाज कर देता हूं। वही शरपसंद
यहूदी, मुनाफिक, मुशरिक, बुत परस्त लोग थे, इस्लाम दुश्मन थे, औरतों के साथ छेड़खानी करते थे, औरतों को हरासमेंट करते थे, जो मुसलमानों को हर वक्त अपने टारगेट में रखा करते थे। ऐसी मानसिकता से बचाने के लिए पर्दे का हुक्म नाजिल फरमाया है और कहा कि अगर तुमको मजबूरी में बाहर घर से जाना ही पड़े तो चादर डाल लो ताकि तुम महफूज हो जाओ और सताई ना जा सको, ताकि खबीस ज़हनियत के लोग जिनके दिलों में मर्ज है वो आपके बारे में जान लें कि ये शरीफ ज़ादियां हैं, ये वो औरतें हैं जो मुअज़्ज़ज़ हैं और मुअज़्ज़ज़ खानदान की हैं। इनके साथ अगर बदमाशी हुई तो किसी की खैर नहीं रहेगी। जैसे कि मैंने आपको एक वाकया पीछे अभी सुना चुका हूं कि ईंट का जवाब ईंट से, पत्थर का जवाब पत्थर से उस वक्त दिया जाता था। ओ आर्या समाजियों, एक बात और कान खोल करके सुन लो। आयत पर्दा की हिकमत में से एक हिकमत यह भी है कि उस वक्त की औरतें बहुत सी बाजारी हुआ करती थीं और अपने जिस्मों को नुमाया करती थीं और अपने जिस्मों को बेचा करती थीं, अपनी हवस पूरी करती थीं और अपनी हवस पूरी करने के लिए मर्दों को अपने पास बुलाती थीं। अपनी ख्वाहिशाते जिंदगी जीने के लिए भी ऐसा करती थीं। मशहूर वाकया है, जाकर के देख लो अगर कुछ तारीख का इल्म है तो। उस वक्त की औरतें जो इस तरह की मानसिकता रखने वाले लोग थे उनको बुलाया करती थी, अपने घरों में झंडियां लगा करके रखा करती थी कि आओ हमारे साथ शाबाशी करो, आओ हमारे साथ जरूरियात पूरी करो और उसके बाद जाओ। और उस वक्त के कुछ काहिन लोग भी फिक्स थे कि जब औरतों को प्रेगनेंसी हो जाती, हमल हो जाता, उस औरत के साथ जितने लोग भी हम बिस्तर हुआ करते थे सबको बुलाया जाता और वो काहिन जिसको कह देता कि ये तेरा बच्चा है उसको वो एक्सेप्ट करना पड़ता था। इस खबासत से बचाने के लिए पर्दे का हुक्म नाजिल किया है, ये भी एक हिकमत है। ओ समाजी भाइयों, ये सब कहने की बातें हैं, हम उनको छोड़ बैठे हैं। जब आंखें चार होती हैं तो मोहब्बत हो ही जाती है। पर्दे की हिकमत में से एक हिकमत यह भी है, मर्दों और औरतों की आंखें एक दूसरे से चार न होने पाएं, एक दूसरे से मिलने ना पाएं। इसीलिए मोमिन मर्दों को पहले हुक्म दिया कि कुल्लिल मुमिनीन यग़ुज़्ज़ू मिन अब्सारिहिम, अपनी नजरों को नीची कर लो। फिर औरतों को कहा कि तुम भी अपनी निगाहों को नीची रखो। यह है इस्लामी तालीम। इसलिए पर्दे का हुक्म नाजिल हुआ। हुक्म हुआ कि ए नबी, अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और मुसलमान औरतों से कह दो कि वो अपने ऊपर चादर लटका लिया करें, इससे बहुत जल्द उनकी शनाख्त हो जाएगी और फिर वो सताई न जाएंगी। पर्दा शरीफ खानदान और शरीफ जादी होने की निशानी थी। ओ जालिमों, गलत बयानी मत करो, अपने पैदा करने वाले रब यानी खालिक के कायनात से डरो। ओ आर्या समाजियों, कम से कम अपने परमेश्वर से तो डर जाते। सुनो, तहर्रुश गेमिया, औरतों का हरासमेंट करना, सेक्सुअली अब्यूज करना, खबीस इंसान नामी जानवरों का काम है, जानवरों का। इसको इस्लाम से जोड़ने की नापाक कोशिश मत करो। ये जुल्म और बर्बरियत की इंतहा है और ये उससे भी बड़ा जुल्म और बर्बरियत है कि तुम किसी मजहब से इस बात को जोड़ दो, किसी मुहज्जब धर्म से इस बात को जोड़ दो। तहर्रुश गेमी या तहर्रुश गेमिया, इस जैसे कोई भी औरतों को छेड़ने वाला, औरतों को छूने वाला, औरतों के साथ खिलवाड़ करने वाला, औरतों का हैरासमेंट करने वाला, इन सब चीजों का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। यह सिर्फ जुल्म और बर्बरियत है, बस और कुछ नहीं। नाज़रीन, हम तमाम के तमाम आर्या समाजियों से और तमाम मुसलमानों से और तमाम हिंदू भाइयों से ये रिक्वेस्ट करते हैं, अगर तुमको इस्लाम जानना है, इस्लाम की तालीमात को जानना है, तो आप कुरान को पढ़ो, ट्रांसलेट के साथ पढ़ो, समझ करके पढ़ो। और अगर नहीं समझ में आता है तो किसी एक मुसलमान से जो कुरान और सुन्नत का सही जानने वाला हो उससे बैठ करके पढ़ने की कोशिश करो और कम से कम कुछ नहीं तो उससे जानने की कोशिश करो। कोई भी तुहमत, कोई भी हुक्म लगाने से पहले कम से कम हम जैसे इंसानों से पूछ लेने की कोशिश करो। हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करेंगे, बारी अल्लाह तुम जैसे तमाम खबीस ज़हनियत रखने वाले लोगों को हिदायत दे। आमीन, जज़ाकल्लाहु खैर। इंशाअल्लाह इसी तरह हर उस ज़हनी बिगाड़ का इलाज करने के लिए हम इंशाअल्लाह हाजिर होते रहेंगे और सच और हक का प्रकाश दिखाते रहेंगे। दीजिए मुझे इजाजत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।